بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین، بڑی خبر دے راولپنڈی میں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی کو پولیس نے سیل کر دیا ہے۔ حویلی کے سیکیورٹی گارڈ کو اپنا سامان فوری نکالنے کی ہدایت۔ آپریشن کے دوران خواتین پولیس کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وفد املاک بورڈ آصف خان کا کہنا ہے کہ لال حویلی کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے۔ یہ انتقامی کارروائی نہیں، شیخ رشید اپیل میں جا سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو خالد چودھری سے۔ جی خالد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، متروکہ وقف املاک نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے لال حویلی میں آپریشن کرتے ہوئے لال حویلی کے 7 مجموعی طور پر جو یونٹس تھے ان کو سیل کر دیا، اور اس موقع پر راولپنڈی پولیس کے ساتھ ایلیٹ فورس جبکہ FIA کے اہلکار بھی موجود تھے، اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک آصف خان کی سربراہی میں یہ آپریشن کیا گیا۔ اور اس دوران جو ہے ایک واحد سیکورٹی گارڈ یہاں پر سیکورٹی پر مامور تھا، جس کو یہاں سے جانے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ یہاں پر میرا سامان موجود ہے، جس کے بعد جو ہے لیڈیز پولیس کی موجودگی میں جو ہے لال حویلی کی تلاشی لینے کے بعد اس کو سامان اٹھا کر وہاں سے جانے دیا گیا ہے۔ اور اس دوران جو ہے جتنے یونٹس تھے وہاں پر انہوں نے اپنے تالے لگا کر ان کو سیل کر دیا ہے۔ اور یہ آپریشن جو ہے کل سے طے شدہ تھا، جس کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ صبح 6 بجے یہ آپریشن کیا جائے گا، جس میں سیکورٹی کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، تاہم یہاں پر کوئی بھی فرد موجود نہیں تھا۔ انتظامی جو یہاں پر لال حویلی سے متعلق عملہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے لال حویلی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکار موجود تھے وہ بھی روانہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے شہر میں دیگر بھی مقامات پر جو آپریشن کیا جانا تھا اس حوالے سے کاروائیاں جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب نائب صدر مسلم لیگ مریم نواز لندن روانہ ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی پاکستان میں 2 روز قیام کے بعد آج برطانیہ روانگی شیڈیول ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اہم پیغام لے کر لندن جا رہے ہیں۔ صدر نون لیگ پارٹی قائد کو بدلتی سیاسی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان لندن میں اہم ملاقات متوقع۔ کیا بڑے میاں صاحب کی وطن واپسی کا پلان پھر تبدیل ہوگا؟ لندن پلان کیا؟ نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیا نون لیگ کی سیاست میں نیا موڑ آنے والا ہے؟ سوالات اٹھنے لگے۔ IMF کا پاکستان میں امیروں سے زیادہ ٹیکس لینے کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے MD IMF کرسٹلینا جارجیوا کی ملاقات۔ معاشی استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال، اقتصادی ترقی کے لیے اقدامات پر عزم کا اعادہ کیا۔ کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ غریبوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، امیروں سے زیادہ ٹیکس لیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی سائیڈ لائن پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ آئندہ 2 روز میں اجلاس میں کیا اہم پیش رفت ممکن ہے، جانتے ہیں نیو یارک میں موجود اپنے نمائندہ نیو سید فیصل علی سے۔ جی فیصل، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ملاقاتوں سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس یہاں پر چل رہا ہے۔ سائیڈ لائنز پر بہت ساری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کی واحد نان گورنمنٹل آرگنائزیشن دوپاسی جو ہے، ان کے ریپرزنٹیٹیوز موجود ہیں جو یہاں پاکستانی وفد کے ساتھ ہائی لیول ٹاکس میں مختلف امور پر انہوں نے چیزیں سامنے لائی ہیں، ان سے جانیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے معاملات ہیں، چیزیں ہیں جو آپ نے سامنے رکھی ہیں بیسکلی، اور آپ کا رول اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے یہاں پر UN میں وہ کس طرح کا ہے؟ ہم لوگ اس ٹائم یونیورسل ہیلتھ کوریج، پینڈیمک پریپیئرڈنس اینڈ رسپانس اور ٹیوبرکلوسس کی میٹنگ کے اندر سول سوسائٹی آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو ود ان دا کنٹری ہم NGOs کا ورک دیکھتے ہیں، یا یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر میکانزم کس طرح سے؟ سول سوسائٹی کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے، اور پچھلی مرتبہ جب 2018 میں بھی اسپیشل سیشن ہوا تھا TB پہ، تو اس میں بھی یہ ڈکلیریشن میں اسپیشلی ایمفیسائز کیا گیا تھا کہ گراس روٹ لیول سے لے کے جو سول سوسائٹیز ہیں ان کی انگیجمنٹ ناٹ اونلی ان دی امپلیمنٹیشن بلکہ مانیٹرنگ، پلاننگ اور اسٹریٹجک جو تھنکنگ ہے اس میں سول سوسائٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، پاکستان میں پینڈیمک پریپریشن اور بالخصوص TB جیسا جو ایک بڑا مرض ہے، اس طرح کی چیزوں پر ایک فائنڈنگس اور پھر اس چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس NGO کا ایک بڑا کام بتایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں بھی امپورٹنٹ میٹنگز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ جی
नाजरीन, आपको बड़ी खबर दे। सऊदी वली अहद की इसराइल से खुफिया मुज़ाकरात की तस्दीक। सऊदी अखबार के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल में सफारती ताल्लुकात की बहाली पर खुफिया मुज़ाकरात जारी है। हमारे रोज़ इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के नज़दीक होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ जिसने भी साजिश की अब मुंह छुपा कर निकलते हैं। मरियम नवाज का मुखालिफिन को ललकार। कहती हैं नवाज शरीफ को निकालने से मुल्की तरक्की का पहिया वहीं रुक गया। मुझे 5 माह डेथ सेल में रखा गया। 200 पेशियां भुगत कर आवाम के सामने खड़ी हूँ। वालिद को तोड़ने के लिए उनके सामने मुझे गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ की वापसी से तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। मुफाहमत या मुज़ाहमत, नवाज शरीफ की वापसी पर बयानिया क्या होगा? तारीखी इस्तकबाल के नारे के बाद बड़े जलसे तक आ गई है। नून लीग का 10 लाख अफराद को मीनार पाकिस्तान जमा करने का टारगेट। ऐसे हालात में नून लीग की सियासत किस रुख जा रही है? इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मतवालों का बस एक ही सवाल, बड़े मियां साहब कब आएंगे? लंदन से जवाब आया अक्टूबर के तीसरे हफ्ते का, जिसके बाद हुई पार्टी में हलचल। लेकिन सवाल ये है कि मियां साहब किस बयानिए से वापस आ रहे हैं? मुफाहमत या फिर मुज़ाहमत, डील या ढील? ऐसे में सवालात उठे तो पार्टी हलकों से ही जवाब भी आना शुरू हो गए। रहनुमाओं ने इजलास में महंगाई का रोना रोया, साथ ही अपने दुखड़े भी सुना दिए। ऐसे में फिर $1 मिलियन का सवाल बन गया कि नवाज शरीफ की पॉलिसी आखिर है क्या? गुत्थी कुछ इस तरह सुलझी कि एक रोज कबल नवाज शरीफ ने मौजूदा महंगाई का अपनी साबिक हुकूमत की कारकर्दगी से मुवाजना पेश कर दिया। इस तरह ये तो तय हो गया कि वापसी पर नवाज शरीफ की पॉलिसी जारिहाना ही होगी। उधर पंजाब भर में मतवाले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। ओहदेदारों को 1 मिलियन अफराद मीनार पाकिस्तान जलसे में लाने के टास्क दिए जा रहे हैं। अदालती हुक्म के बाद बड़े सियासतदानों के बड़े करप्शन केसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल। 7 साबिक वज़राए आज़म, 14 साबिक वज़राए आला के केसेस बहाल। 78 साबिक वज़रा, 176 पार्लियामेंटेरियंस और 114 अफसरान के केसेस भी खुल गए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, नैब ने मुल्क भर में तमाम करप्शन केसेस खोल दिए। चेयरमैन नैब की जेर सदारत अहम इजलास, बड़े फैसले। 450 से जायद पार्लियामेंटेरियंस, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रिटार पर आ गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी शुजात हुसैन, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज के केसेस दोबारा बहाल हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज के केसेस भी दोबारा बहाल। वज़राए आला असलम रईसानी, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, परवेज खटक, महमूद खान, कायम अली शाह, मुराद अली शाह और मंजूर वट्टू के केसेस भी फिर से खुल गए। मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी, आतिफ खान, ख्वाजा साद रफीक, सब्तैन खान, शहराम तरकई, खुसरो बुख्तियार, हाशिम जमा बख्त, नसरुल्लाह दरिशक और हिना रबानी खर के खिलाफ नैब केसेस दोबारा बहाल हो गए। 460 रेफरेंसेस, 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरियां और 623 शिकायत की तहकीकात दोबारा शुरू होगी। पीपल्स पार्टी के 89, नून लीग के 62, तहरीक इंसाफ के 47 अफराद के केसेस बहाल हो गए, जबकि MQM के 8, काफ लीग और JUI के 12 साबिक अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ केस खुल गए। सानेहा 9 मई का कोई मुल्जिम बच ना पाए। जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ करने वालों के गिर्द कानून का घेरा मजीद तंग होने लगा। चेयरमैन PTI समेत दीगर मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत की दफात भी शामिल कर दी गई। PTI चेयरमैन 9 मई को दहशत गर्दी के 10 मुकदमात के बराह रास्त मुल्जिम नामजद है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश का कहना है चेयरमैन PTI की जाय वक़्फ़ा पर गैर मौजूदगी के बावजूद बगावत पर उकसाने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शाहिद रिजवी की रिपोर्ट देखिए। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह ने साबिक इत्तेहादी जमात को निशाने पर रख लिया। जयाले रहनुमा का कहना है निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, लेवल प्लेइंग भी नून लीग को ही देना होगी। नून लीग के 5 लोग निगरान काबीना का हिस्सा हैं। तो कीर शाह, ओहद चीमा, फवाद हसन फवाद का डायरेक्ट ताल्लुक नून लीग से है। सिंध से ब्यूरोक्रेट्स को हटाया गया, मगर पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जबकि सिंध में तरक्याती काम बंद करवा दिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और गवर्नर कामरान टेसौरी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करके दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। हाफिज नईमुर रहमान ने कामरान टेसौरी को चाइना कटिंग का मास्टर कह दिया। गवर्नर का जवाबी वार तंज किया। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने नाम के साथ मेयर लिखना शुरू कर दें। आप मेयर नहीं बने तो इसका बदला शहर कायद से न ले। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए और ये देखिए कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर चाइना कटिंग फेज 2 के लिए रऊफ सिद्दीकी साहब को बुलाकर एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिताह करने पहुंच गए। हाफिज नईमुर रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिताह ना करें।
اور جب ہمارا ٹاؤن ناظم اس کے اوپر کام کر لے گا تو پھر ہم آپ کو بلا کے افتتاح کرا دیں گے. میں نے کہا حافظ نعیم الرحمان صاحب مجھے تختی لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے, میں کیونکہ پہنچ چکا ہوں, آئیں ہم سب مل کے افتتاح کر لیتے ہیں. آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم مل کر افتتاح کرتے ہیں. اور پھر مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا, انہوں نے مجھے فون کیا تھا, اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں, آپ نے ٹاؤن کے چیئرمین کو اعتماد میں نہیں لیا, آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. ٹیلی فون کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب ناموں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, میرا نام بھی ہٹا دیں. بات یہ ہے کہ ایک پارک ہے جس کا میں افتتاح کرنے جا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 5 سے 10 منٹ دیں, میں آپ کو مزید تفصیل بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کے 2 کارناموں کی وجہ سے ہم دلدل میں پھنس گئے. دھرنا تحریک ہمارا آخری پروگرام نہیں, عوام کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور دھرنے کے شرکاء سے خطاب. کہا اسمبلیوں میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, آج ملک کا ہر بچہ ورلڈ بینک کا مقروض ہے. مہنگائی کی سونامی ہے, اس سونامی کا رخ ہم نے موڑنا ہے, اس سونامی کا مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم نے مقابلہ نہیں کیا تو آپ بہہ جائیں گے اس سونامی میں, پورا ملک بہہ جائے گا. میرے ملک میں معدنیات کے پہاڑ موجود ہیں, جب میرے ملک میں سونا اور چاندی کے بڑے ذخائر موجود ہیں, جب میرے ملک میں درب و ٹن کوئلہ موجود ہے, پھر پاکستان میں غربت کیوں ہے؟ ملک میں عام انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخر اور فروری کے شروع میں پولنگ کے اشارے ملنے لگے ہیں. ساتھ ہی ادارے نے صدر مملکت کے خط پر سرخ جھنڈی دکھا کر اپنی آئینی پوزیشن بھی واضح کر دی ہے. الیکشن کا مینڈیٹ اور آئینی جنگ میں مختلف آراء پر دیکھیے یہ رپورٹ. آئین ایک تشریحات دو اہم آئینی دفاتر, 2 ہی مختلف موقف. آخر الیکشن کمیشن کے اعلان کی ثوابدید ہے کس کی؟ بات کرتے ہیں آئین کے آرٹیکل 48(5) کی. اس آرٹیکل کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے 90 روز میں الیکشن ضروری ہیں اور صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں. اسی آرٹیکل کو جواز بناتے ہوئے صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو مشاورت کے لیے بلایا. لیکن بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی. آئینی تشریحات میں ڈرامائی موڑ تب آیا جب الیکشن کمیشن کی جانب سے ایوان صدر کو سرخ جھنڈی دکھا دی گئی. اب بات کرتے ہیں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کی, جس کی روح سے انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ہی ثوابدید ہے. اس سیکشن میں 26 جون 2023 میں ترمیم کی گئی, جس کے بعد سارا معاملہ الیکشن کمیشن کے ثوابدید میں آ گیا. اب معاملہ الجھا ہے آئین کے آرٹیکل 48 اور الیکشن ترمیمی ایکٹ میں. اس حوالے سے قانونی ماہر اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے سیکشن 57 کے تحت الیکشن کمیشن ہی انتخابی شیڈول جاری کرنے کا مجاز ہے. عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو ہے. کوئی ادارہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا. یوں آئینی گیم میں الیکشن کمیشن کیمپ کی پوزیشن واضح ہوتی نظر آتی ہے, مگر صدارتی آفس سے آخری بول تک لڑنے کی پالیسی ماضی میں بھی خوب نظر آئی. ایسے میں سیاسی حلقے سوال اٹھاتے ہیں آخر آخری گیند تک لڑنے کا فائدہ ہی کیا ہے, جبکہ میچ پہلے ہی ون سائیڈڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج 35 برس کے ہو گئے. پیپلز پارٹی ملک بھر میں بلاول بھٹو کی سالگرہ منا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت کو سنبھالا. ان کی زندگی پر نظر ڈال رہے ہیں کامران سہیل اپنی اس رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 21 ستمبر 1988 کو کراچی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی. خاندانی حالات کے سبب 1999 میں اپنی والدہ کے ہمراہ ملک سے باہر چلے گئے. بلاول بھٹو زرداری تاریخ کے طالب علم بھی رہے. 2010 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے جدید تاریخ اور سیاست میں BA آنرز کیا. بلاول بھٹو نے دوران تعلیم طلبہ یونین کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا. بلاول بھٹو زرداری 30 دسمبر 2007 کو محض 19 برس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین مقرر ہوئے. انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اپنی ماں کا یہ مشہور جملہ دہرایا تھا کہ جمہوریت بہترین انتخاب ہے. بلاول بھٹو زرداری نے 2012 کو باقاعدہ طور پر کراچی کے بڑے جلسے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا. تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ تمہارے جنازے پر
तुम्हारे अपने भी शरीक नहीं होने चाहेंगे। उन्होंने अपने बयानात की तशहीर के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी 13 अगस्त 2018 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन बने। यूं इन्हें कम उम्र पार्लियामेंटेरियन का भी एजाज हासिल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी 27 अप्रैल 2022 को वजारत खारजा के ओहदे पर फाइज हुए। कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। आलमी दहशतगर्द भारत के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में सिख बरादरी का एहतजाज। लाहौर और पेशावर में सिख रहनुमा की क़यादत बड़े एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से भारत के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में सिख बरादरी सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने आलमी दहशतगर्द भारत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सिख बरादरी का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक महिंदर पॉल ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत है। सिखों की टारगेट किलिंग के पीछे हमेशा हिंदुस्तान का हाथ रहा है। साबिक एमपीए सरदार रमेश सिंह का कहना था, भारत ने हमेशा सिखों पर जुल्म ढाए हैं। मुतालिबा करते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन सामने आए और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का नोटिस ले। हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और ये साबित हो गया। कैनेडा के वजीर आजम ने हाउस ऑफ कॉमन च खड़े होकर गल की है। तो मैं यही मुतालबा करांगा कि पाकिस्तान के अदारे भी अपने इस मौके नूं इहदा फायदा चुकन। पेशावर में भी सिख बरादरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल जैसी भारतीय कार्रवाई दहशतगर्दी है। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन और सिख रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की तहकीकात का मुतालिबा किया है। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के सरबराहान की अहम मुलाकात। बेंचेस की तश्कील, ज़ेर-अल्तवा मुकदमात और फौरी नौइयत के मुकदमात को जल्द समाअत करने के लिए मुकर्रर करने पर तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान बार के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा ने बताया, चीफ जस्टिस ने उनसे तहरीरी तजावीज़ मांगी है। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की वकला तंजीमों के नुमाइंदों से अहम मुलाकात। केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की तश्कील के मामलात से मुताल्लिक तजावीज पर तबादला ख्याल। इजलास में वकील रहनुमा आबिद साकी ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा, तो चीफ जस्टिस बोले, अगर फैजाबाद अमल दरामद केस मुकर्रर नहीं होगा तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? जिस पर वकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी मैं धरना दूंगा। चीफ जस्टिस से अहम इजलास के बाद पाकिस्तान बार के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, चीफ जस्टिस ने उनसे तहरीरी तजावीज मांगी हैं। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे को भी शामिल किया जाएगा। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और सीनियर अटॉर्नी जनरल सरदार तारक मसूद साहब ने हमारी तजावीज सुनी, कमेंट्स भी किए और एक कमेटी तश्कील दे दी गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक नुमाइंदा और एक नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से होगा। हसन रजा ने मजीद कहा, उन्हें पूरी तवक्को है कि चीफ जस्टिस ने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे और उनकी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। अंडर कंट्रोल डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद फिर से राह रास्त पर आने लगा है। ऐसे में डॉलर 250 रुपए होने की भी उम्मीद जाग गई है। डॉलर की उड़ान और लैंडिंग के दिलचस्प खेल पर देखिए ये रिपोर्ट। अच्छा भला डॉलर अचानक टेक ऑफ करके 331 रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमत ने डंडा उठाया तो हैरत अंगेज तौर पर अमेरिकी करेंसी की कदर नीचे आती चली गई और देखते ही देखते डॉलर 293 पर आ गया। हुकूमत की कार्रवाई शुरू की तो हैरान कुन हकाइक सामने आ गए। डॉलर की उड़ान के जिम्मेदार जखीरा अंदोज और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अनासिर निकले। कार्रवाई के बाद मुल्की तरसीलात ज़र में 10 से 20% इजाफे की उम्मीद पैदा हो गई। पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनियों की एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं, क्रैकडाउन से कबल एक्सचेंज कंपनियों को रोजाना 5 मिलियन डॉलर्स मिलते थे, लेकिन अब उन्हें 15 मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं, यानी इसमें 200% इजाफा हुआ है। यही वजह है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट्स में नुमाया कमी आई है और फी डॉलर 293 रुपए का हो गया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर कार्रवाई जारी रही तो डॉलर 250 रुपए से नीचे आ जाएगा। मलिक बोस्तान ने बताया कि डॉलर की बड़ी तादाद बैंकों के लॉकर्स में मौजूद थी। बैंक
बैंकों का अमला भी ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस निकला है। करप्ट अमला माफिया के साथ मिलकर डॉलर्स, हवाला और हुंडी में इस्तेमाल करता था। इन लॉकर्स की चाबियां अमले के पास होती थीं और जैसे ही उन्हें ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद की तरफ से पैगाम मिलता था तो ये करप्ट बैंक अमला अमरीकी डॉलर्स की गैर कानूनी तिजारत शुरू कर देता था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक क्रैकडाउन के बाद ऐसे अनासिर के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है, जिसके बाद कवी इम्कान है कि डॉलर की कीमत मजीद नीचे आएगी। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर तक रहेगा। कराची से काशिफ मुनीर की रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समंदरी रास्ते पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान महाना $12 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। UAE के लिए पाकिस्तान की 6 कंपनियां काम कर रही हैं। क्वारंटाइन डिपार्टमेंट के डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन के मुताबिक गुज़श्ता 10 दिनों में 46 कंटेनर्स मुत्तहिदा अरब अमारात गोश्त लेकर गए हैं। 6 स्लॉटर हाउसेज ऐसे हैं जो कि UAE के अंदर अपना कराची से UAE एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ और मटन मीट को, जो कि एक कंटेनर है। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ 29,000 kg, जो अप्रॉक्सीमेटली 29,000 kg का एक कंटेनर होता है। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन ने मजीद बताया कि कराची से मटन और बीफ को एक्सपोर्ट किया जाता है, चिकन कराची से एक्सपोर्ट नहीं होता। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात को गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। आपको खबर दें, स्टेट बैंक ने 5 डिजिटल बैंकों को डिजिटल बैंकारी खिदमात की असूली मंजूरी दे दी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बैंकिंग सेक्टर के लिए आज का दिन यादगार करार दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है, फॉरेन एक्सचेंज असलाहात के तहत गैर कानूनी कारोबार करने वाली एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आइंदा सिर्फ एक तरह की एक्सचेंज कंपनी कारोबार कर सकेगी। स्टेट बैंक म्यूजियम कराची में डिजिटल बैंकिंग खिदमात की असूली मंजूरी की तकरीब। अपने खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था, डिजिटल बैंकारी की खिदमात की असूली मंजूरी एक यादगार लम्हा है। 2022 के आगाज से स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के नए दौर का आगाज किया। डिजिटल लाइसेंस की दरखास्तों में से बेहतरीन 5 डिजिटल बैंकों का इंतखाब किया गया। At the start of 2022, State Bank of Pakistan set the foundation for a new era of banking in Pakistan by launching licensing and regulatory framework for digital banks. Based on the credentials of all the applicants, we selected 5 banks. गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। बड़े बैंक ज्यादा सरमाए के साथ एक्सचेंज कंपनियां ला रहे हैं। At the same time, SBP is working with banks and other stakeholders towards improving the overall customer journey and user experience so that the citizens of Pakistan have easy, convenient and low cost access to financial services. गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि डिजिटल करेंसी पर काम जारी है। बहुत से ममालिक में डिजिटल करेंसी की खदशात को मैनेज किया जा रहा है। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। दफातर और इदारों में मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी तो लाजमी है ही, लेकिन पेशावर में एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जहां तलबा भी बायोमेट्रिक लगाते हैं। गवर्नमेंट टेक्निकल हायर सेकेंडरी स्कूल गुलबहार में लंच के लिए मेज़ और कुर्सियां भी मौजूद हैं। स्कूल में तलबा की क्लास में LEDs पहले ही नस्ब की गई। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से शाहिद खान। हाजिरी लगाते ये बच्चे कोई मुलाजिम नहीं बल्कि गवर्नमेंट शहीद अहमद इलाही टेक्निकल हायर सेकेंडरी स्कूल गुलबहार के तलबा है, जो रजिस्टर्ड की बजाय बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगा रहे हैं। तलबा की जदीद तरस के हाजिरी में खुसूसी दिलचस्पी। हम लोग आते हैं, ठीक है, जैसे ही आते हैं बस यहाँ पे जो है बायोमेट्रिक में अपना जो वो अंगूठा लगा के ऊपर चले जाते हैं क्लास में, हमें और कुछ इशू होता नहीं है। बच्चे पहले यहाँ के 10-15 मिनट स्कूल पहले आते हैं, आकर हाजिरी लगाते हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी ने तलबा को वक्त का पाबंद कर दिया। रजिस्टर में हाजिरी न लेने से क्लास में तकरीबन 20 मिनट तालीमी सरगर्मी बढ़ गई है। हाजिरी में गलती की गुंजाइश भी खत्म हो गई। तलबा को पढ़ाने के लिए क्लास में LED पहले से ही नस्ब की गई है। मेरे जहन में ख्याल है कि क्यों ना बच्चों के लिए भी बायोमेट्रिक लगाए, ताकि फर्स्ट पीरियड में जो बच्चों के 20 मिनट ज़ाया होते हैं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स यानी बच्चों के ज़ाया होते हैं, ताकि वो भी ज़ाया ना हो जाए, वो एकेडमिक के लिए रह जाए। टेक्निकल हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लंच के लिए मेज और कुर्सियों का भी बंदोबस्त मौजूद है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक बच्चों को निजी तालीमी इदारों से ज्यादा सहूलियत फराहम की जा रही है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर दे, लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में मदरसे से छुट्टी करने पर मुअल्लिम ने शागिर्द को तशद्दुद का निशाना बना डाला।
13 साला अंस ने बारिश की वजह से छुट्टी की। मदरसे के मौलम ने बच्चे को डंडों से मारा और ज़मीन पर पटकता रहा। उस्ताद के तशद्दुद से बच्चा शदीद ज़ख्मी हो गया। मौलम ने बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया। साथ ही मौलम के कहने पर बच्चे को शदीद ज़ख्मी हालत में 2 नामालूम अफराद अस्पताल पहुंचा गए। बच्चे को तशवीशनाक हालत में इलाज जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट दे रहे हैं कि लाहौर के इलाके मिलत पार्क में मदरसे से छुट्टी करने पर मौलम ने शागिर्द को तशद्दुद का निशाना बना डाला। 13 साला अंस ने बारिश की वजह से छुट्टी की। मदरसे के मौलम ने बच्चे को डंडों से मारा और ज़मीन पर पटकता रहा। उस्ताद के तशद्दुद से बच्चा शदीद ज़ख्मी हो गया। मौलम ने बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया। साथ ही मौलम के कहने पर बच्चे को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस पर मज़ीद जानेंगे शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताइएगा बच्चे की अब हालत कैसी है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका मिलत पार्क है। यहाँ इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो मदरसे का कारी है उसने 13 साला जो तालिब इल्म है उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। जो पुलिस का कहना है कि मिलत पार्क इलाका में नेशनल बैंक कॉलोनी में एक मदरसा था जहाँ 13 साला लड़का जो है वो पढ़ता था। उसको जो है कारी ने जो कारी शुएब है उसने छुट्टी करने पर जो है जिस दिन को केवल बारिश हुई तो उसने बच्चे ने छुट्टी की। जिस पर अगले दिन बच्चा जब वहाँ मदरसे गया तो कारी शुएब उसने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है बच्चे को 2 घंटे तक जो है कमरे में बंद किया। हालत गैर होने पर जो है दीगर वहाँ पर जो मौजूद थे मदरसे में कारी उन्होंने मुदाखलत करके जो है बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ उसकी हालत तशवीश। जी ठीक है, शाहिद रिजवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। पीर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गौहर नज़ीर सजादा नशीन दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ की बेटी की शादी सियासी इज्तिमा बन गई। शादी की तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियात, साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। पीर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गौहर नज़ीर की बेटी की शादी मारूफ सियासी ख़ानदान के सरदार अहमद यार हराज के बेटे डॉक्टर कासिम यार हराज से हुई है। शादी की पुरवकार तकरीब में एतज़ाज़ अहसन, साबिक़ चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी, फवाद चौधरी, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद, साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर, सरदार बिलाल खान, सरदार मंसूर सलीम खान, यूसुफ अयूब, साहिबजादा आमिर ज़फ़र, इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट, ADCR कैप्टन कासिम एजाज समेत मरी के सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।